गाइस वेलकम बैक, स्वागत आप सबका एक और नए वीडियो में। तो भाई आज मेरी नानी है गैल बुढ़ापा में सालों नजर नानी ये ओए रुक जा पड़ जा भी भाई खड़ी बोली है ना, ये दुलेड़ा काम के है सब तो क्या बात होगी वो भी देखती मना ओली आली तो खेलते रहा ये अपना बालक बच्चा जा रहा छोटा मोटा। चल आगे मिलते हैं एक बार। फिलहाल अभी जा रहे हैं, एक स्कूल में फंक्शन है, छोटे भाई का स्कूल में फंक्शन है, तो वहाँ पे चल रहे हैं। देख के वहाँ पे दिखाऊँ पूरा व्लॉग आज नॉर्मली होने वाला है, पर मजे आएंगे व्लॉग में, एंड तक देखना। गाइस हम हमारे स्कूल में जा रहे हैं तो मैंने क्या रहता ठीक चलो चलते हैं। RPS नाम है स्कूल को। चलो भाई चलो भाई, ये फंक्शन हो रहा है छोटा सा अंदर स्कूल के अंदर। ये RPS स्कूल है। अरे नानी छोटे ना हाथ में क्यों कुछ छोड़ दो चल रहे भाई अभी स्कूल के अंदर। ना और के गीत सब बजा रखो है। Miss Asha, Miss Monica, who is the academic coordinator for grade 7, grade 6, and along with her students, she has been promoted to grade 7 because she understands the kids and the expectations of the parents. So we have promoted her to grade 7. And again for grade 8, we have Miss Asha. So Miss Asha was the academic coordinator for grade 7, and along with her students, she has been promoted as academic coordinator of grade 8. And now let me have the pleasure to invite on the stage Miss Sarla, who is the head, Dr. Sarla, who is the head for grade 9 and 10. She is an iron lady, I would say. She's an iron lady, and she takes care of all the adolescence issues and tantrums of the children in grade 9 and 10 with utmost patience. That is very, very important. And now the most crucial part, we have Mr. Deswal, who is the head for grade 11 and 12. He is also the man with cool head, and he handles all those grade 11, 12 children where parents come and say कि हमारी तो नहीं सुनता, हमारी तो नहीं सुनती। तो सर बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कोई बात नहीं मैम, सर हमारी सुन लेंगे, आप बस थोड़ा कोऑपरेट करो और थोड़ा पेशेंस रखो। Yes sir, many of the parents will agree. Parents are sitting here. And now we have Mr. Sandeep, who is the coordinator for foundation sections in middle wing. We have exam coordinator from primary wing, Miss Sunita. I think she's again not here. Then we have the activity coordinator for grade 4 and 5, Miss Akansha. Miss Salesh, the activity coordinator for middle wing. Miss Jyoti, exam coordinator for middle wing. We have specified persons who are taking care of this department so that it runs with utmost, I would say, fairness. So the system goes very smooth. And then we have Miss Madhu as activity coordinator for senior wing. You must have met few people, but let me introduce you to you once again. So as soon as you enter the school, you see Miss Sushma and Miss Nidhi at reception. Please come on the stage. She is the one who would be addressing all your calls on mobile as well as on landline, and asking you for the OTPs when you are here to get the gate passes. So they are both these ladies are really taking care of the school. And कई बार तो मेरा गुस्सा इनके ऊपर भी निकल जाता है, जब फोन आता है फर्स्ट हैंडेडली तो यही आंसर करते हैं, so कुछ गलती हो जाता है। हाँ, we have academic coordinator for grade 5, Miss Nidhi. Then we have, after from reception you are directed to admission cell. So we have Miss Nisha and Miss Pushpa taking care of the admission cell. Pushpa ma'am is not here, but we have Miss Nisha. So I really want to introduce her to all of you.
See, Hebenswari has got solution to all the things. That's what I say. That's why he's the best. And may I request all my activity team to please come on the stage. Please, please, please. So they have really worked hard. Along with the children, a big thanks to the parents and the students. After finishing their exam, they didn't go to their maternal, grandparents' house or paternal grandparents' house. They opted to stay back, perform for the parent orientation, and many of the children, they gave presentations there, outside the classrooms as well. So I'm very thankful to all the students and all the parents who have really, spared their vacations and then be here, and they were performing. So we have Miss Ranjana, Mr. Sunil, Miss Vijayshri. I must discuss about yoga, but little later, Mr. Deepak, Miss Sona. You must come now. You all must come. Miss Sapna, Mr. Vishnu, Mr. Bimal. So they will come. We introduced yoga last year, and trust me, when I went to yoga classes, I just saw nothing happening. But I kept my patience. I said, yoga is not a thing which would be, like it would be, you can have it in one day, so you need to have more time. So after 6 months, I saw children actually performing with Vijayshri ma'am. And now after 1 year, one complete year, I am very, very, very happy that children performed so very well. And trust me, all these children were there on the stage for the very first time. None of them was a regular yoga student. So Miss Vijayshri took their classes all through the year, and slowly and gradually she picked up few children and they performed there. And about Odissi dance, I must tell you that some of the students were performing Haryana. जी हाँ, Kathak Tomari performance, showcasing a strong connection between music and dance. So I will not make you wait anymore. Let's welcome our next performance, like taught by Sunil sir. इसी तरह के ताने बाने से सजा है हमारा नाटक अपना अपना हिस्सा। आपके हिस्से का जो आपको लगे उसे आप ले लें, जो ना लगे उसे छोड़ दें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई अपनों का भी गुलाम हो सकता है? तो आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना दें, बस नाटक देखें और समझें। माँ की जिम्मेदारी आधी तेरी और आधी मेरी। सुबह की रोटी हम देंगे और रात की चैना, ठीक है ना माँ? जैसा तुम कहोगे बेटा, पर दोपहर की कौन देगा? अगर एक टाइम नहीं खाओगी तो कोई जान नहीं निकलेगी माँ। डॉक्टर भी कहते हैं बड़ी उम्र में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर सुस्त हो जाता है। ठीक है बेटा, पर डॉक्टर ये तो नहीं कहते ना कि बड़ी उम्र में सांस भी ना लो, नहीं तो दमा हो जाता है। तेरे को कह दिया ना माँ, सुबह की रोटी मैं दूंगा और रात की बड़ा। 3 दिन नहाना धोना मेरी तरफ
और 3 दिन बड़े की तरफ। और 7वें दिन का क्या बेटा? अगर एक दिन नहीं नहाओगी तो कौन सा रोग घट जाएगा माँ? अपने कपड़े आप धोना, 1 महीने साबुन की टिक्की हम देंगे और 1 महीने बड़े। जैसा तुम कहो बेटा। जीवन चलता है, रुकता है तो फिर चल पड़ता है। ये जीवन भी अजीब है, जाने कौन कौन से रंग दिखाती है जिंदगी। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है जिंदगी। ऐसे ही अजीब मोड़ पर खड़ी थी नसीब कौर की जिंदगी। चलो देखें आगे होता है क्या। ताई आया। बैठ जा ताई। बैठते गई पर बेटा थारी अकल पे पत्थर पड़ गए। देख बेटा, साथ रहने की रीस ना होती, दोनों भाई मिल कर रहा करो। क्यों तेरी माँ ने दुखी कर रहे हो बुढ़ापे में? नहीं ताई, अब नहीं निभेगी हमारी। आपको इसलिए बुलाया था कि हमारा बंटवारा करा दो। ओहो बेटा, घरा में छोटी मोटी बातें होती रहे हैं। अच्छे नहीं ताई, अब बातें छोटी नहीं रही। रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है हम अलग ही हो जाएं। पर बेटा, ठीक है ना ताई, जब इनकी बनती ही नहीं तो क्या फायदा इकट्ठा रहने का। जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो उन्हें भरना मुश्किल हो जाता है। ठीक कहता है बेटा पवित्र। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तो अच्छा अपना कमाओ अपना खाओ। बस ताई को मत रुलाओ। अगर नहीं संभाल सकते तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। भाई हम तो बात कहते हैं सच्ची, कड़वी तो लग ही जाती है। ना बेटा पवित्र, मैंने नहीं जाना किसी आश्रम में। मैं तो यहीं रहकर अपना समय काट लूंगी अपने परिवार के साथ। वहां तो मैं मर ही जाऊंगी। ओहो ताई, अब भी तू कहाँ जिंदा है? इनके लिए तो तू मरी हुई है। ईब के करा नसीब कौर, तेरे छोरे इकट्ठा रहना नहीं जानते। मैंने तो बहुत समझा लिए। क्या बताए नसीब कौर? नसीब कौर के तो नसीब ही हार गए। बड़ी मुश्किल से भगवान से ये बेटे मांगे थे और आज इन्हीं बेटों से रोटी मांगती हूँ। अब मैं क्या कहूँ? जैसा ये कहते हैं वैसा ही कर दो। ताई, जमीन तो हमारे पिताजी के नाम पे है, हमारे नाम कैसे चढ़ेगी? वो तो बेटा थारे नाम चढ़नी है, क्योंकि पिता की मौत के बाद विरासत के तौर पर जमीन उसके बेटों के नाम अपने आप चढ़ जाती है। पर ताई, पिता की मौत का अब क्या सबूत? और फौज ने कारगिल की लड़ाई के बाद लापता बता दिया। अगर पिताजी जिंदा भी होते तो अब तक मिल जाते, और अगर जिंदा भी होंगे तो बूढ़े होकर मरने वाले होंगे। फिर ताई पटवारी को बुलाकर जमीन आधी आधी करवा दे और कल तहसील जाकर जमीन हमारे नाम चढ़वा दे। आदि आदि नहीं भाई, अपना अपना हिस्सा कहो। ताया फौजी सज्जन सिंह के तुम 5 वारिस हो। सही कहता है बेटा पवित्र। एक तो नसीब कौर और चारों भाई बहन। सत में जमीन तो लड़कियों के नाम ही चढ़ेगी। भाई देखो, हम तो बात करते हैं सीधी, कड़वी तो लग ही जाती है। ऐसे कैसे चढ़ेगी लड़कियों के नाम? आज तक तो चढ़ती नहीं देखी। वैसे बेटा कानून तो वारिसों को एक जैसा समझता है। अगर बहनें लिख दें कि हमें कोई ऐतराज नहीं तो जमीन को हम दोनों भाइयों में आधी आधी बांट देंगे। वो भी ताई अगर अंगूठा लगा दे तो। पर बेटा पवित्र, बात तो बहनों के अंगूठे की है ना, नसीब कौर के अंगूठे का क्या? हाँ वो तो मुझे पता है ताई, ये ताई का अंगूठा काट कर भी लगा लेंगे। हम तो बात करते हैं सच्ची, कड़वी तो लग ही जाती है। इस तरह कहानी आ गई उस मोड़ पर जब हमें ना चाहते हुए भी अपनी ही आंखों के सामने अपने ही खून को पानी होते देखना पड़ रहा। क्योंकि पैसे का लालच ही कुछ ऐसा होता है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है और लालच की ऐसी पट्टी हमारी आंखों पर चढ़ा देता है कि हाँ, कौन? मैं प्रीतो। आजा प्रीतो। और
ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਮਲ ਚੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੂੰਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋ ਨਾ ਨਸੀਬੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੇਗੀ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਬੁੱਢੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਈ। दुर्गा शक्ति मातृत्व का रूप है माँ। माँ कहते हैं धूप छांव सी होती है माँ, हर परिस्थिति में ढलती है माँ, न थकती है न रुकती है माँ। माँ ना कुछ कहती। आ गया नसीब कौर, कहाँ है मेरे शेर पुत्र सुखा और चैना? क्या बात हो गई नसीब कौर? क्या बताएं, वो तो कब के चले गए यहाँ से, सुख और चैन। मतलब? अब ये घर वो घर नहीं रहा था जो तू छोड़कर गया था। ओए, पहेलियां मत बुझा, सीधा बताओ बात क्या है? तो है ओए सुखी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चैने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो एक बार हाथ तो लगा के दिखा, मेरे से पंगा लेगा। ये ले, तूने मुझे हाथ भी कैसे लगाया? ये ले, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। मुझे कौन सा तेरे साथ रहना है? माँ तेरे साथ रहेगी? नहीं, माँ तेरे साथ रहेगी। चल ठीक है, ना तेरी सही ना मेरी, हम माँ का बंटवारा कर लेते हैं। नहीं, पहले हम जमीन का बंटवारा करेंगे, ठीक है? फिर चल खेत। नसीब कौर, सरहद पर देश के लिए जंग लड़ते लड़ते मैं अपने घर पर चलती जंग से बेखबर रहा। उधर मुझे दुश्मनों ने बंदी बना लिया और यहां तुझे अपनों ने। हौसला रख नसीब कौर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पवित्र बेटा, चल मेरे साथ। लो देख लो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नहीं क्या शौक चढ़ गया तुझे इस उम्र में रंग बिरंगे कपड़े पहनने का? मुझे तो लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। मैं तो कहती हूँ संगल डाल दो इस बुढ़िया को। आज तो सर पर लाल चुन्नी ही ली है, अगर कल को जींस पहनकर खड़ी हो गई तो बदनामी हो जाएगी। ये भी हो सकता है सर से चुन्नी हटाकर गली में खड़ी होकर गिद्दा डालने लग जाए। देखे नहीं जैसे हजारों पागल गली में बेशर्मों की तरह फिरते हैं। संगल डाल दो इस बुढ़िया को। ओए सुखे, क्या हाल कर दिया मेरी नसीब कौर का। पिताजी आप पर। अरे वाह पिताजी, बड़े वक्त पर आए हो। हमने आज ही सब कुछ बांट लिया, आधा आधा। माँ भी बांट ली, अब तू आ गया है, एक तरफ तू हो जा और एक तरफ माँ। ताई जी, माँ और पिताजी का भी बंटवारा करा दो। नहीं बेटा नहीं, ये पाप मेरे हाथ से मत करवाओ, इन्हें तो भगवान ने ही बांट रखा है। पिताजी आप मेरी तरफ और माँ तू चाइना की तरफ। वाह भाई वाह, पिताजी की आती है 10,000 महीने की पेंशन और इस पागल बुड्ढी पर तो 10,000 ऐसे ही लग जाएंगे। नहीं भाई, ये नहीं अपने को मंजूर, कोई और रास्ता ढूंढो। तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है बेटा, रास्ता तो मैंने ढूंढ लिया है। पवित्र बेटा, इनको रास्ता दिखा।
मैं फौजी सज्जन सिंह, सुपुत्र सरदार मिल्खा सिंह, गांव बांगावाला, जिला भटिंडा। मैं अपने पूरे होश हवास में ये बयान करता हूँ कि मेरे दोनों बेटे सुखा और चैना मेरे कहने से बाहर हैं, इसलिए मैं उनको अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। आज से मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। लो जी, ये की है ताज ने खरी बात, कड़वी तो लगेगी। हाँ बेटा, किसी ने ठीक ही कहा है, पूत तो कपूत हो जाते हैं पर मापे को मापे नहीं होते। रो मत बेटा, तुम्हारी रोटी का इंतजाम करके आया है सज्जन सिंह। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मेरे बेटों को मनाने की कोशिश कीजिए। पवित्र, समझाना अपने ताया जी को, ये क्या कह रहे हैं। समझाने की जरूरत ताया जी को नहीं है ताई। हाँ बेटा पवित्र, ये पीढ़ियों का फर्क है। किसी एक को तो भिखारी बनना ही है, औलाद को या माँ बाप को। मैं तो बात कहती हूँ सीधी, कड़वी तो लग ही जाती है। वाह ताई, ये की तूने पवित्र वाली बात। जमीन और पैसे का लालच ही कुछ ऐसा होता है, उसे पाने वाला इंसान भी रोता है और ना पाने वाला भी रोता है। पाने वाला पैसे तो पा लेता है पर अपनों को खो देता है, और खोने वाला अपने खून पसीने की कमाई और जो उनकी वजह से इस दुनिया में आए होते हैं सब कुछ खो देता है। प्रोग्राम खत्म, चलो अब चल रहा। चलो ना, सुनो प्रोग्राम कैसा लागो? अच्छा लगे, बढ़िया लागो। बढ़िया, अपनी भाषा बोल देसी वाली में। मेरे को प्रोग्राम कैसा लागो? बहुत बढ़िया लग गया। यार बोल लिए एक नंबर की लागे। हाँ, इस ऐसा प्रोग्राम था, हाँ। एक स्कूल में होना चाहिए, हाँ, है ना। कोई लंबरदार नहीं बनी रीस है, कोई सरपंच नहीं बनी, और है कोई फैसला करावा से। भाई सुनियो, नाटक की पूरी एक वीडियो बनाई है, हाँ। डाल दूंगा ये ब्लॉग में, एंड तक देखियो। बढ़िया वीडियो है अपने भाई, बढ़िया लगेगी। लाइक कमेंट शेयर, यहाँ पर बैठियो आराम से रोटी खाते समय देखियो ये वीडियो ने, फीलिंग लेके बढ़िया होगी फीलिंग। वीडियो देख के आना। दो बच्चे आदो चढ़ ले ऊपर, लेकर दे है सब माँ की। हाँ माँ की रे लेकर दे फिर। हाँ। कितना धरती का तुम्हारा। और कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ब्लॉग की ना मस्त और लाइट नीचे। ठीक है, बाय।